Good evening, class. Today we are going to discuss the next important topic, and the topic is biodiversity and its conservation. Okay, so we know that biodiversity is a very important topic, and it is so large a topic, and we cannot expand and we cannot elaborate biodiversity in a single way. Okay, first of all, this term was given by Wilson, and but concept was given by W.G. Rosen in 1985. Okay, so what is the biodiversity refers from? So biodiversity means it is the variety of all life forms. Means it is the variety of all life forms, means plants and animals also. Okay, so the variety and different types of variations are generally comes in the class from plants and animals, that is called biodiversity, and it is present in various ecosystem, and we know that, and we have already studied the ecosystem which was given by A.G. Tansley. Okay, so biodiversity means it is a complete structures in which the plants and animals both survive in a different varieties or different variations are called biodiversity. Okay, first of all, it is given by W.G. Rosen in 1985. Most important, so many times the questions may be asked, who has given the term? So term is given by Wilson, but concept was given by W.G. Rosen. Okay, so next we are going to discuss that biodiversity is generally categorized into three types. Three types, most important, because in one of the topics generally asked in board exam. So what is the meaning of genetic biodiversity? So genetic word is generally related to genes. So genetic का मतलब है it is the diversity at the gene level. Gene level में whether it is plants and animals also, because plants में भी gene level होगा which is considered as germplasm, and अगर human beings की बात करेंगे तो उनमें भी genes होंगे, animals की बात करेंगे तो उनमें भी होंगे. So genetic level पे जिनमें diversity होती है that is called genetic biodiversity. Next है species diversity. Species diversity का मतलब होता है it is the diversity एट द इकोसिस्टम लेवल, मतलब एक खास इकोसिस्टम लेवल पे नंबर ऑफ स्पीसीज जो है उनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, या फिर हम स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट, ecological diversity. What is the meaning of ecological diversity? So ecological diversity is another important task, because ecological means it is the diversity at the ecosystem. It means that most of the time this diversity is also considered as alpha, beta and gamma diversity. So alpha biodiversity, which is related to a species. Gamma is most important because that is the diversity which generally includes the alpha and beta is the another connective link between alpha and gamma. So most important, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम. ये जो हमारा डाइवर्सिटी हो रहा है वो इकोसिस्टम के ऊपर ही डिपेंड होते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा जो इकोसिस्टम है इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड इट शुड बी इन हमारे इकोसिस्टम में जितने प्रकार की जो भी डाइवर्सिटी है उनके बारे में स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. Okay, so next topic is we are going to discuss the different topics of diversity, because in India there is a different diversity and world also possess the different biodiversity in our nature. So first of all, patterns of biodiversity की बात करते हैं. The first one is latitudinal gradients. What is the meaning of latitudinal gradients? So latitudinal gradients means, in this we know that tropical regions सो ग्रेटर लेवल ऑफ स्पीसीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ट्रॉपिकल लेवल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मोर वेरिएशन देखने को मिलता है एज कंपैरिजन देन टेम्परेट जोन के अलावा. व्हाई? बिकॉज some of the scientists and some of the human beings has given the hypothesis on the basis of tropical regions why there is not a sudden changes of climate, so that most of the human beings, most of the animals, most of the plants survive very accurately. Okay, so that is the most important point. They have clear cut evidence is their temperature, their climate is not a suddenly change. It means most of the organisms survive very well without any creating problem.
Second, most of the scientists has given their some more hypothesis like many more animals have well suited for their that type of temperature. They have well developed temperature system in their body to regulate different types of metabolic activity so that they are capable to survive in any climate. So that is the two types of reasons in which tropical regions have a richness of species as comparison to temperate zone. इनमें दो हाइपोथेसिस थी कि उनकी बॉडी डिजाइन वो इस तरह की है कि वो अपने आप को किसी भी क्लाइमेट में रखने में कैपेबल होते हैं। सेकंड पॉइंट, उनमें टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। थर्ड, टेम्परेचर कैसा भी हो, क्लाइमेट कैसा भी हो, अपने आप को तो वो एडजस्ट कर ही ले रहे हैं। ठीक है, सो ये सारे सब फैक्टर्स थे जो ट्रॉपिकल को सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बनाती है। वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट यहाँ का जो टेम्परेचर था, कुछ साइंटिस्टों का ये मानना था कि टेम्परेचर जो है सडन चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर टेम्परेचर सडन चेंजेस होगा इट मींस देयर इज आल्सो डिस्ट्रॉय और डिक्लाइन और सेवरल रेट ऑफ स्पीसीज। वहां पे बहुत सारे स्पीसीज जो है उनमें डिक्लाइनेशन आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स के बारे में था। सो इन दिस वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन आल्सो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट has given the graph on the basis of species area relationship. Okay, so what is the graph stand for? Graph किसके लिए stand था? So most important the relationship between species richness and area represented by a rectangular hyperbola. इन्होंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से बताया कि जितने स्पीसीज हैं वो उतने एरिया को कवर करते हैं बट इन अ लिमिटेड टाइम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड हाइपरबोला पैटर्न। ठीक है, ये ग्राफ को इन्होंने ड्रॉ किया और उस ग्राफ में इन्होंने हाइपरबोला पैटर्न से बताया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैज गिवन द इक्वेशन इज log s plus log c z log a. So what is the different terms are generally expressed in a mathematical way? log s यानी s जो था वो हमारा स्पीसीज रिचनेस था, मतलब हमारी स्पीसीज क्या होते जा रही थी, इंक्रीज होते जा रही थी। इफ द नंबर ऑफ स्पीसीज इज इंक्रीजिंग इट मींस दे आर आल्सो रिक्वायरिंग द नंबर ऑफ एरिया आल्सो, उनको उतनी ही ज्यादा मात्रा में एरिया की भी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट ए मींस एरिया, जितनी स्पीसीज होंगे दैट मींस दे विल आल्सो कवर मोर एरिया। स्पीसीज बढ़ते जाएंगी उनके हिसाब से वो एरिया भी एक्सपेंड होते जाएगा, वो खुद एक्सपेंड करेंगे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। z इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, यानी c से जो हमारा ये जो y लाइन है x axis and y axis we have studied in mathematics portion, so y axis से c वाला जो portion है वो intercept होकर जाता है। ठीक है, so that is the area species generally given by Alexander von Humboldt. So most of the times in exam this graph may be asked. Okay, so what is the importance of this graph? In this Alexander von Humboldt wants to explain that, ये बताना चाहते हैं generally this graph is generally showing the richness of species. इसमें जो species है वो richness कर रही है but in a second way this is the hyperbola, it means it is not a clear cut. So that time Alexander von Humboldt they have changed the sequence of, most of the scientists also confirmed that they generally Alexander von draw a straight line, generally drawn a straight line to showing the richness of species in a perfectly manner, यानी जो स्पीसीज बढ़ रही है वो एक सीधे स्टार्टिंग पॉइंट से बढ़ रही है, इनमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, क्योंकि हाइपरबोला इज नॉट अ एक्यूरेट वे टू डिफाइन द रिचनेस ऑफ स्पीसीज। हाइपरबोला से हम किसी भी स्पीसीज रिचनेस को नहीं बता सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर स्पीसीज कम होता तो भी हाइपरबोला पैटर्न में होता, ज्यादा होते तो भी हाइपरबोला पैटर्न में होते, कम होते तो भी हाइपरबोला। मींस हाइपरबोला इज नॉट एग्जैक्ट वे टू शो द रिचनेस ऑफ स्पीसीज। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन आपको जो दिख रही है, अगर स्ट्रेट लाइन बैंड होती इसका मतलब आपको पता चल जाता कि जो रिचनेस ऑफ स्पीसीज है वो हमारी डिक्लाइन हो रही है, और अगर आपकी सीधी लाइन अगर स्ट्रेट निकल रही है इट मींस इट इज शोइंग दैट स्पीसीज इज आगे की तरफ बढ़ रही है। सो दैट इज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इट्स गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस सम मोर important points on biodiversity and its conservation also, we will also discuss in next phase. Okay, so in next phase we have to discuss some more varieties of biodiversity and how many types of generally factors are responsible
for disturbing the biodiversity. Okay, so in first phase we have discussed completely what is the meaning of biodiversity and what is the adject rule of biodiversity and why it is important for all human beings and plants and animals also. Okay, so now depending on the natures of biodiversity, generally biodiversity is also affected by different types of factors. Okay, so let us discuss the factors of losses of biodiversity. Okay, so biodiversity losses is a great and disastrous change which are generally completing in the present scenario, and it is a very dangerous for all the human beings and all the animals also. Why? Because most of the human beings are generally busy in nowadays to fulfill their own requirement. Okay, so that time they use lots of forest product, lots of animal product also for completed for their pleasure purpose. Okay, for decorative purpose, lots of things the human beings generally wants in a nowadays, but they completely forget about the demerits of different types of animals. So that is the great and disastrous change which are generally having the problems of disturbing our biodiversity. Okay, so first point we are going to discuss that the loss of biodiversity में जो सबसे पहला रीजन हमको डिस्कस करना है जिस कारण से हमारी बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, एंड दैट इज द फर्स्ट इज कॉल्ड हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट लॉस का मतलब होता है जनरली आई टोल्ड यू most of the human beings are generally busy for cutting woods and cutting different types of plants products for fulfill their own requirement, so they don't aware about most of the animals are generally living in that forest, and if we will cut the forest, so where the remaining animals will go. तो अगर हम उस पूरे पेड़ पौधों को ही काट लेंगे तो उनमें रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. इसका मतलब कि जो हमारा हैबिटेट है और जो हमारा फ्रेगमेंटेशन है वो कैसे लॉस हो रहा है. हम उस पूरे हैबिटेट को ही क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ठीक है, सो डिस्ट्रॉय करने की वजह से उसको फ्रेगमेंट में तोड़ रहे हैं. फ्रेगमेंट में तोड़ने से हमारा जो पूरा बायोडाइवर्सिटी है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है पूरी तरीके से बेघर हो रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और बेघर होने में सबसे इंपॉर्टेंट डिजास्टर्स चेंजेस ये हैं कि दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल टू डाई, और वो मरने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. व्हाई? बिकॉज वी हैव जस्ट स्नैच्ड हैबिटेट फ्रॉम दोज एनिमल्स, यानी हम उस एनिमल से उनका जो हैबिटेट था वही हम उनसे छीन लिए. सो दैट इज द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट रीजन. नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ रिसोर्सेज. Over exploitations means we are using the resources more than one times and two times also. So over exploitation resources means, as we are knowing that in our nature there is a very limited amount of some of the resources are available. तो जैसे पेट्रोल है और भी फॉसिल फ्यूल्स हैं बहुत सारे, वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है. एंड इफ वी आर यूजिंग एक्सप्लॉइटेशन मैनर मीन्स उसका बार बार इन अ मल्टीपल फॉर्म के लिए उनका यूज करना, इट मीन्स वी आर जनरली declining the rate of resources. We are generally declining the rate of resources means over exploitation of resources. resources का एक से ज्यादा फॉर्म में यूज करना बार बार हमारे पूरे के पूरे रिसोर्सेज सिस्टम को ही खत्म कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज द आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन. नेक्स्ट, alien species. Alien species is also called as exotic species. Alien species का मतलब होता है we are generally taking different types of species to adjust in a new climatic area. हम किसी बाहर से किसी स्पीसीज को लेकर आते हैं ब्रीडिंग के लिए, बट वी फॉरगेट दैट दैट टाइप ऑफ स्पीसीज इज आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर नेटिव स्पीसीज. लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो एलियन स्पीसीज वहाँ के नेटिव स्पीसीज के लिए काफी नुकसानदेह. एज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वाटर हाइसेंथ. Water hyacinth is generally brought from European and it is planted in every part of the India, mostly in Bengal also. That time water hyacinth causes the problem. It also requires the high amount of biological oxygen demand, and due to the requirement of oxygen in the water level, most of the organisms certainly die. बहुत सारे जो organisms थे वो उस oxygen demand को पूरा ना करने की वजह से survive नहीं कर पाए. So water hyacinth is an example of alien species. It means that we are generally taking the different types of species in our community and we have to add in a new community, and the native species also disturbed due to their actual activity. ठीक है, after that
को एक्सटेंशन स्पीसीज। को एक्सटेंशन स्पीसीज का मतलब होता है जैसे कोई चीज किसी के लिए प्रेजेंट है और वो चीजें एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। सो सपोज उसमें से अगर मैं किसी एक चीज को भी हटा लूंगा, इट मीन्स वन ऑफ द स्पीसीज विल आल्सो एक्सटेंड। सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ पॉन्ड। अगर हम एक तरह के तालाब की बात करते हैं, वहां पे कुछ जू प्लैंक्टॉन्स है, कुछ वहां पे फिशेस वगैरह भी हैं। जो फिशेस है वो जू प्लैंक्टॉन्स के ऊपर डिपेंड है, जो जू प्लैंक्टॉन्स है वो हमारे फिशेस के ऊपर डिपेंड है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस में हम ये देखते हैं, अगर वी हैव टू रिमूव द फिश, डेफिनेटली तो जू प्लैंक्टॉन्स विल बी रिमूव्ड, या फिर हम जू प्लैंक्टॉन्स को वहां से हटा लेंगे, डेफिनेटली द फिशेस विल आल्सो डाई एंड इट विल आल्सो रिमूव। तो फिशेस भी हट जाएंगी और वो भी खत्म हो जाएगी। सो दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड को एक्सटेंशन। उसी प्रोसेस को हम को एक्सटेंशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? आखिर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ऐसे क्या तरीके थे जिससे हम तरह तरह की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते थे? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल सिस्टम्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक एंड सिमिलर बुक आल्सो, एंड यू हैव टू स्टडी बिकॉज इन योर बुक देयर इज अ different things are given, but you have to mention only the important points which generally asked in your board exams. Okay, so first one is narrow utilitarian arguments. The first one is narrow utilitarian argument means the biodiversity conservation focuses more on a economic benefit. ज्यादातर वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए उन सारे रिसोर्सेज को क्या करती है, प्रिजर्व करती है इन द फॉर्म ऑफ फूड के फॉर्म में, फाइबर के फॉर्म में, टैनिन वगैरह को स्टोर करती है ताकि उनसे वो इकोनॉमिक बेनिफिट को उठा सके। इफ इट इज नॉट कंजर्विंग, इट मीन्स अवर बायो रिसोर्सेज विल कंप्लीटली गोइंग टू डिक्लाइन। मतलब हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे खत्म होने की तादाद में है। ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट केस। नेक्स्ट, ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स। ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स मतलब ये थोड़े से इनसे एडवांस फॉर्म में होते हैं। इट मींस दैट द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फोकसेस ऑन इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम को फोकस करते हैं, मोस्टली सर्वाइव सच एज पॉलिनेशन, most important factor, soil formation, photosynthesis etc provided by the nature। जो नेचर के द्वारा जो हमें दिया गया है, if we are not saving, अगर हम उस चीज को ही नहीं बचा रहे, it means we are also destroying the nature and biodiversity also। okay, next, ethical arguments है। कुछ ऐसे ethical arguments होते हैं which are totally based on our ethical and aesthetical issues, जो हमारे धार्मिक और हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे वो भी हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो इन योर बुक देयर इज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर गिवन। द फर्स्ट वन इज इन सीटू एंड सेकंड इज एक्स सीटू। In situ and ex situ, these two topics is most important, and most of the time these questions maybe arises in your board exam. So what is the meaning of in situ? In situ means the conservation of different types of plants and animals in their natural habitat is called in situ. In situ means the conservation in inside way, inside मतलब अंदर की तरफ, खुद ही के organism में the conservation of plants and animals on their natural habitat is called in situ conservation. We have to discuss in different types of topic like national park हम देखते हैं, सेंचुरीज वगैरह जो भी देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें रामसर साइट्स वगैरह भी डिस्कस करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इन सीटू टाइप कंजर्वेशन कहते हैं, जिसमें हम नेचुरल प्लांट्स और एनिमल्स को जो भी होते हैं उनको हम उन्हीं के क्लाइमेट में कंजर्व करते हैं फॉर देयर बेटरमेंट, उनके बेटरमेंट के लिए, ताकि उनकी जो लाइफ प्रोसेस है, उनकी जो कंटिन्यूटी है, उनकी जो जीन पूल है वो डिस्टर्ब ना हो, खत्म ना हो। दैट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन? एक्स सीटू कंजर्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इन सीटू। एक्स सीटू मीन्स होता है द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर आउटर हैबिटेट। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो खत्म होने के तादाद यानी बहुत करीब हैं, ऑफ देयर डिफरेंट हैबिटेट, यानी उनको उस हैबिटेट से हटाकर किसी और के हैबिटेट में ले जाकर प्रिजर्व करना, दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू हैबिटेट। इसे हम एक्स सीटू हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ इन सीटू एंड एक्स सीटू। अब हम इनके बेनिफिट्स को देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है? सो बेनिफिट्स की बात करते हैं इन सीटू में, तो ये बहुत बेटर मोड होता है ताकि हम उनके लाइफ को कंजर्व कर सके। एक्स सीटू में ये भी उनके लाइफ को कंजर्व करने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या होते हैं, उनकी कंटिन्यूटी पे ध्यान रखा जाता है, इनको भी उनकी कंटिन्यूटी पे भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है,
इनमें ज्यादा एरिया की जरूरत पड़ती है, X-C2 में बहुत लेस एरिया की जरूरत पड़ती है। इनमें एक सबसे डिमेरिट्स ये है, मोस्ट डिमेरिट्स के इनमें मास कम्युनिटी डिजीज होती है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस होता है। मास डिजीज में जनरली क्या होता है कि इसमें जो है एक अगर सपोज किसी स्पीसीज को प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली वो जो बीमारी है पूरे कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाएगी। और इसमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब होता है हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कॉम्पिटिट करेंगे और एक दूसरे को किल करने की कोशिश करते हैं। सो देयर इज अ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इसका डिमेरिट्स ये है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, डिजीज कॉजिंग। दूसरा, इट एक्वायर्स लार्ज एरिया। ओके, फायदे इसके काफी हैं। इसमें जेनेटिक पूल हमारा बना रहता है, एनिमल्स हमारे सेफ रहते हैं किसी इंडेंजर्ड होने की वजह से, प्लांट्स को अलग और जानवरों को अलग हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंट वेज टू प्रोटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। X-C2 की बात करते हैं तो X-C2 का भी इंपॉर्टेंस हमने देखा। X-C2 में भी हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को उनके अलग अलग मोड पे सेव कर सकते हैं। देयर इज नॉट अ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इनमें कोई इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन नहीं होता। इनकी सबसे बेनिफिट्स ये है कि दे रिक्वायर्ड अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एरिया। इनको एरिया बहुत कम जरूरत पड़ती है, ठीक है, एरिया कम जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज इसमें एक बेनिफिट पार्ट ये है, दे आर जनरली यूज्ड फॉर क्रॉस ब्रीडिंग सिस्टम। X-C2 में क्रॉस ब्रीडिंग ज्यादा होता है। इसमें बहुत सारी चीजें जो हम नेक्स्ट फेज में डिस्कस करेंगे, जीन बैंक, सीड बैंक, है ना, क्रायो बैंक्स वगैरह, बहुत सारी चीजें हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो whatever I have taught you today, you have to revise very well. If you have any doubt, you can contact me. Thank you, students.